is not. You give me your details, I'll tell you who you are. Your son is good. That means you're born around the daytime, so that son becomes strong. So he became Prime Minister during साढ़े साथी twice. Okay. और उनका नंबर नहीं आया, तो साढ़े साथी तो दोनों की चल रही थी. तो क्या इसको बैठ कहेंगे? नहीं कहेंगे. तो वहाँ पे वो नो करते करते यस कर जाते हैं. Somebody will look at you and will say, wow. Yeah. It is like love at first sight. And I always say, love is blind. Keep open your eyes because you need to know a person beyond. Looks. 100%. And sometimes they say looks can be deceptive. वो half statement है. पूरा statement है. If a Manglik will not marry a Manglik person. Hi everyone and welcome to yet another podcast of the Happy Hour. Well, they say that stars have a way of shaping our lives, and today we have with someone who's actually mastered the art of understanding the stars. He's worked with some of the biggest names in India, ranging from Bollywood to cricket to politicians. So I think it's going to be a very interesting, a very intriguing discussion that we're going to be having today. We have with us Dr. Sandeep Kochhar. He is a celebrated name across India in a lot of different fields. We are very excited to have you today. So welcome to the Happy Hour, Dr. Kochhar. Thank you so much, Asa. Hope you're doing great. Absolutely great and very excited because I think आज जिन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, हमारी जनरेशन बहुत क्यूरियस है उस सबको लेके. So we'll start with the very basics. I've been following you for a while and आपका career मुझे बहुत intriguing लगता है, बहुत interesting लगता है. Like the kind of paths that you've chosen, it is very vast, ranging from your stage presence, your TV shows, getting on movies and then serials, and then उसके बाद being a cricketer and then now into astrology for the last 25 years. So why don't you take us through your journey as a cricketer, journey as someone who's been a camera person, and journey as someone who's now into astrology, shaping people's lives. So कैसा है? How does that work for you? Yeah, so after listening to all this, your viewers would be wondering, whether I'm jack of all. Yeah. But trust me, I feel I'm blessed because I believe life is a journey, and you need to enjoy, every aspect of it. And my 25 years of journey with astrology, I've become more a philosopher, and that helped me to become a poet. And I wrote it once कि अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं. अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूं. So I believe in that, like you said about your generation and the next generation and Gen Z, what you call them, they believe in planning. They plan things to the T, and that is something which I always tell them. Though I'm an astrologer, but I believe I'm more a life coach and a counselor. I make people understand about themselves, because the most difficult thing to understand is who you are. You feel you are right. I also feel the same. Then who is right? So astrologer who is a stranger, if he is telling you about your strength, your weakness, your potential, your journey, and most importantly your time, then you start introspecting. That is how the change will come to you. So in my life, you have asked me that question. So the change happened at various levels and stages in my journey. I wanted to play for India. That was my only dream in life, and I was quite good. I used to bowl leg spin and then googly later on, and I was with Rahul Dravid. We were in the same club in Bangalore. You were playing together, both of you? Yeah. So you were at that level in cricket also? Yeah, I played under 16, under 19 UP State, then under 22 Karnataka State. I moved to Bangalore, and we were in the same club. We had the same coach, KK Tarapur sir, and it was amazing, and a lot of people at that time, actually, there were 7 players playing for India from Karnataka. Karnataka was a Ranji Trophy winner at that time, and there was no IPL. So I'm talking about that era. This was what year? A few years back. So what I'm trying to say here is, I can tell you that 94, 95 was a year I was. IPL nahi tha, so it would have been that year. So Rahul, in fact, his debut came after that when we were playing together. He was not playing for India at that time, but as I've said, life is a journey, so I couldn't pursue it because of some change in circumstances in my life. And then I started learning astrology, not to become an astrologer, because in my entire generation, ancestors including, no one is astrologer. I'm the first and the last. Okay. But I think it happened to me, and I feel I'm blessed because now I read horoscopes of cricketers and even coaches, from Greg Chappell to Rahul Dravid to now Gautam Gambhir. Wow. So I think
I have a lot of peace with it, and I'm quite content and I'm quite happy. I've got no regrets that I couldn't pursue. Yeah, in between, after my television shows, on Z and later on Sahara, the serial which I was doing, it was a crime-based show basically, but through the eyes of astrology. So it was quite an interesting one. And then few other serials happened to me as an actor, and then 2 movies happened to me, one Hindi and one Marathi as a lead. But then I realized I think I'm not meant for this because you have a calling. So I started, and as I said, I have a philosophical bent of mind. Why, when, how, where. So I started pursuing it more seriously. Though my show became the longest running show ever on in India on Z News. It came into Limca Book of Records. So I then made up my mind that okay, let me do this. Maybe I'm meant for this. So then I became more a counselor and life coach, and I'm happy with my 25 years of journey with astrology, and God has been kind. Wow, I think that's very inspiring, and I like the way you say it happened to me, because मैं होती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ कि मैंने ये करा है, but the way you say that it just came on to me, and you the kind of gratefulness you have towards things, I think that's something I get to learn from you. Okay, so I have a lot of questions about astrology, and I'm keeping it not very surface level, because for someone like me who's in this age, और बहुत सारे हमारे जो viewers हैं जो similar age group में हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं astrology, astrologer के पास जाना है, planet and this and that, but we want to know what astrology is. So we'll start from the very basics in terms of a layman's language. Astrology क्या होती है? अगर we can start with this. Sure, Astha. So first you need to have Astha. Believe. Trust. So when you believe in something, then only you will hear that, and you will then follow that. When you will have apprehensions about it, that it is a superstition or it is a pseudoscience, like when BBC London, they interviewed me live in London, and they said, we are getting a lot of messages here, this astrology is a pseudoscience. It's a pseudoscience, yeah. So I said, no, it is not. You give me your details, I'll tell you who you are. And before the show began, they told me clearly that we will not talk about astrology. We will talk about life in journal and whatever it is. So, and then he got intimidated. He shared his birth details with me live actually. Yeah. So I put his details in my laptop, made his horoscope, and 3-4 seconds it took, and I said everything about him, that you are in totally mess, and I think you are trying to leave this organization. And everyone was in shock because he was in that situation. So then he kept quiet, and then he started asking me different questions. But इतना भी पता चल जाता है. Of course, it is all about time. It is not about who the person is. It's not about are you Abhishek Bachchan, not doing great and a son of a legendary figure, or born in 10 Janpath and is still doing Padayatra like Rahul Gandhi. It is not about who you are. It is all about your time. Or the person who is selling a tea on the railway platform can become Prime Minister of India that 2-3 times. Absolutely. So that is something which is beyond anything. So it is all about time actually. So when time is right, whatever you do, it is good. And when time is not right, no matter who you are, you don't get it. So that is how it is. So what I'm trying to say is astrology, the question which you have asked me, is nothing but the programming of your mind. The day you were born, the set of planet when you are born in, you become exactly like that. Like your eyebrows, the moment I make your horoscope, before that I know what kind of planet you will have. Like your nose, like your sun is good, that means you're born around daytime, so that sun becomes strong. And when you have eyebrows like this, no matter how hard you can plug it, you can still can't change the density and the fall of the hair, which I can see. That means you have a good Mars, so you are an authoritative person, and you will not let anyone dominate you. So that is your leadership skill. So that is how. So this is just a phase and you use and. So right now you don't even know my date of birth. Nothing. And still you could sense it from my face. Yeah. So it is, and then your palm, the shape of your hand, and the shape of your thumb and the lines on your palm. So while talking, I will try to by the time we'll finish this podcast, I will try to know you better. But what I'm trying to say is, just looking at this, and then horoscope. Yeah. In 10 seconds, I will tell you who exactly you are. Even the people who know you since last 10 years, they may not be aware the way I will be telling you about you. So this is something which is amazing. Wow. It is so fascinating that I don't think that any other science can be compared with astrology, Astha. So this is definitely a divine science, because it is more than 5,000 years old. A part of Vedas, Rig Veda is the oldest scriptures on the planet. So anything which is there from there to, and I check my horoscope on the MacBook. So something which can
can travel till MacBook from Vedas. I think It has to have is some power. Absolutely. So I believe in that, and I think astrologer can help you to understand your strength, weakness, potential, your timeline, your past, your present, and where you're heading. So it is complete information. You can't compare this with any kind of supercomputer even, because they can check, anyone can check your pulse, your heartbeat, and any other things about your body, nothing about your mind. So what is going on here? Yeah. Astrologer can only tell you, you are going through this situation. This is how you are feeling low. This is how you are feeling frustrated or dissatisfied or maybe happy, depending on what timeline you are in. So I don't think any other science can match on this. And is it different for everyone? Because a lot of people course, are... it is But then individualistic. people are born at the same time. Yeah, so on when the Rahul same Gandhi day. was born, I was born there next to his bed. But can I become Prime Minister of India? Yeah, that's the question. Maybe yes. So what I think, what I'm saying is, it depends on who you are. So there is a word to it. It is known as prarabdha in Sanskrit. Prarabdha means the deeds of the past birth. So Rahul Gandhi, he was born in a family where already 3 prime ministers are there. The moment he will get a good time, even a little bit good time in his life, he will become prime minister of the country. That is how it is. Or maybe for me, if I want to become a politician or prime minister, it may take decades because I have got no There's no background. past history. So who you are. So that is the reason in astrology, Asa, they say, person, place, and environment. So that is very important. You need to inculcate that. Got it. Even if they have the same horoscope. Got it. Wow. A lot of people say that आपकी destiny आप खुद बनाते हो. But I've not heard this from a lot of astrologers where they say that your future can be predicted. You just need to do the right things at the right time. But I think our generation or a lot of people believe in the fact कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे planet this that XYZ कहाँ है, मैं अपनी destiny खुद बनाऊंगा. तो अगर मुझे life में ये चीज करनी है, I work hard for it, this will happen. So how do these two things align? Because I believe in both. I believe in destiny. I strongly believe in the placement of the planets. अभी ये time चल रहा है. So how do these things align and how do actually planets impact our day-to-day life? So both the sides are correct in a way, like you said. Even in astrology they say you need to put your efforts. संस्कृत में कहते हैं या जो bottom line है astrology में वो भी कहता है कि कर्म प्रधान है. Your deeds can define your destiny. But coming back to your question, even if you spell destiny, it is DES. DINY. So there is a tiny word attached to destiny. It also says that there is a lot of scope to enhance your things. Like, 2 people born in different environment. One is born with a silver spoon, another one maybe in a small town or maybe a small village in a hut. A person who is born with a silver spoon may not be able to do great in life. The person born in not a great environment can become a legendary figure. Yeah. So it depends on your energies, your belief system, and your want. Like I gave example of Narendra Modi ji, the 3 times he became chief minister of the state and 3 times prime minister of India. And as per whatever, that he used to sell tea on the railway platform. So can you dream, in the wildest dream, can you get this thought that this Shotu who is serving a tea, to you is can become prime minister? Rule the nation. So that is how it is. So energies, it plays a great role. Your want, your desire, and I always believe in that. Those who dream the most, do the most. And even when I was, I'm from a very small town in UP, Shahjahanpur. When I used to ride my, I used to call it BWM. Bicycle without machine, basically. Bicycle. So from BWM to BMW, I recorded one podcast, that journey from BWM to BMW. So I used to think like this, कि someday I need to, एक देश का एक महान आदमी साइकिल चला रहा है. So I used to. So what I'm trying to say here, I think आपकी manifestation बहुत strong है. Yeah. So I was coming on that exactly, Asa, कि ये तो manifestation की दुकान तो अभी शुरू हुई है, And people, अभी मैं फ्लाइट में सोच रहा था manifestation, मुझे लग रहा है कि लोगों को गलती से ये manifestation की जगह उनको manifestation सुनाई देता है. So everything they try to visualize, manifest related to their materialism. Manifestation. So which is not manifestation, it's manifestation. So you have to first manifest that you should be a happy person, and that is the most important thing in life. I always say people who are happy, they are blessed. और यही आपका मुझे बहुत अच्छा टाइम लगता है, happy hour. So happy hour, happy minute, happy second, every moment should be happy. This is what I believe in. I loved it. So this is what I think. I have written hundreds of poetries mostly on happiness. कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिली कोई वजह तो आईना ही देख डालो. To look at the mirror and smile. Sweet.
ओके सो हम अभी प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे थे. सो आई एम गेटिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट एस्ट्रोलॉजी. हाउ डज दैट वर्क? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्लैनेट अफेक्ट्स व्हाट, ये हमें कैसे पता लगता है? एंड फॉर समवन लाइक मी, फॉर अ लेमैन, इज इट पॉसिबल कि आप अपने घर बैठे बैठे समझ सको कि मेरा ये प्लैनेट है? लाइक आई नो वीनस इज फॉर लव, बट मुझे इतना ही पता है बस. देखो वो समझाना थोड़ा सा डेंजरस इसलिए भी होगा क्योंकि अभी इफ यू आर अवेयर लोग यूट्यूब देख के ऑपरेशन कर रहे हैं. Okay. Okay, we will not get into that. I can explain few things. Little knowledge can be dangerous also क्योंकि उसको जैसे अभी किसी ने कहा कि मेरी 7.5 चल रही है, but that's 7.5 नरेंद्र मोदी and sorry I'm bringing these two names again and again because they are a glittering example, you know, to understand better things in a better way. So दोनों both of them have the same moon sign. Indian astrology is based on moon sign, not sun sign. और दोनों का वृश्चिक Scorpio moon sign है, Prime Minister and waiting Prime Minister, you know. तो ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 7.5 ट्वाइस. और उनका नंबर नहीं आया तो 7.5 तो दोनों की चल रही थी. तो क्या इसको बैड कहेंगे? नहीं कहेंगे. 7.5 इज अ टर्म वेयर यू नो यू मे गेट मोर रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स थिंग्स एंड यू बिकम मोर ऑक्यूपाइड एंड यू मे फील स्ट्रेस. मुझे घर जाने का टाइम नहीं है. और दूसरा इंसान है जिसकी 7.5 चल रही है, वो घर पे बैठा हुआ है, उसके पास जॉब नहीं है. दोनों को स्ट्रेस है. तो which one is a better stress? The stress where you are doing something more, you know. So that is how it is. So depend on your individual timeline. वहाँ पे क्या चल रहा है वो ज्यादा important है बजाय कि that. But now coming back to your thing. तो Venus is about beauty, love. ये pink color है उसका. So it is all about creativity, glamour, passion, music, dance, drama, acting, painting, fashion, passion, love, including lust, desire is all ruled by Venus. Okay. So anyone who has a good Venus will have beautiful eyes. You know, तो हम कहते हैं love at first sight. Sight क्यों बोल दिया? Love at first nose भी बोल सकते थे. Because Venus, you know, your eyes represent Venus. तो जितना ब्यूटीफुल आईज होती हैं उतना हॉरोस्कोप में वीनस अच्छा रहता है. दैट इज हाउ यू कैन इजीली रिलेट दैट वे. देन मार्स है, जैसे मैं आपकी आईब्रोज की अभी कर रहा था कि दैट रूल्स योर अथॉरिटी. इट इज मार्स eyebrows. So ऐसे लोगों का डोमिनेंस रहता है. their body language is sometime you know intimidating हो जाती है, but they are good in sports. They are good leaders. They are good in handling things. You know, initiative पे believe रखते हैं. तो they are Mars is strong. Jupiter जिसका strong होता है, they are wise people. They become more counselors and trainers and consultants. You know, that उनका management skill अच्छा होता है, learning abilities अच्छी होती हैं. They can be spiritual also, preachers also. मैं भी वही कर रहा हूँ. तो this is what it is. And then मतलब आपका जुपिटर स्ट्रांग है. Yeah, without Jupiter is a planet of learning, wisdom, knowledge, and then you need to know how to say and what to say. But मैं वैसा ऐसा नहीं सोचता. I say whatever comes into my mind without even thinking. But it is okay. Then comes like planet Mercury. Achha. And Mercury is the most dangerous planet, Astha, because Mercury is a planet of thinking. Okay. So it is not what you are, it is what you think is more important than, because your thought become action. Like you spoke about manifestation, so I believe in your visualization, what exactly you are thinking, how you are thinking about your own self. So people who have strong Mercury, like any strong planet, is blessing. The only planet which I am scared of, if it becomes stronger, is Mercury. And when Mercury becomes strong, the person becomes too perfectionist. You know, they can't let go anything, they can't ignore anything. They try to do things in a very, very particular way. So this can become risky also in some Totally. They tend to mess up their world, actually, entire life. They become difficult wife and difficult husband also, because they can't ignore, they can't let go, they read between the lines. I know what you are saying, I know what you meant. So they will start thinking on your behalf, and that makes their life complicated. Got it. How do you know कि आपका कौन सा planet strong है? Is there a way to know, or you have to consult only for this? Yeah, of course, this is my only bread and butter, so I would say consult an astrologer. But if you look at your horoscope, obviously you need to know some certain rules. That Mercury get exalted in Virgo, Jupiter get exalted in Cancer, Venus is exalted in Pisces. So you need to know the basic to understand that. Got it, understood. But that's very interesting the way you've put. मतलब सुनने में ये तो unbelievable लगता है कि एक बाहर यूनिवर्स में इतना बड़ा प्लैनेट हम जैसे किसी छोटे से इंसान की लाइफ भी इम्पैक्ट कर सकता है. It's wonderful to even. Absolutely. Sorry, I'm cutting you. Amitabh Bachchan, he is the brand ambassador of Bollywood. Yeah. तो एस्ट्रोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? Saturn.
and we have never seen Saturn from the naked eye. तो जो planet जो आप कह रही हैं, जो planet which we have not even seen, has got the maximum impact. So this is the beauty of astrology. Wow, that's wonderful. Now that you've mentioned Amitabh Bachchan, I know that you've had like insane clientele in terms of the people from Bollywood, Amitabh, Shah Rukh, lots of other people, then cricketers, then politicians. While I know that they have one thing in common, they're all famous and they're all like big people in the industry. तो इनके birth charts में कुछ commonality होती है that you as an astrologer can read across, or you can say कि यार this is the thing, one common thing in all of their birth charts that you've. So one thing which is missing in their life, एक तो आपने common बता दिया, वो है ये happy hour. So mostly they are insecure, most of them. Really? Yes. So हमको क्या दिखता है, हमको वो चमक दिखती है, वाव फैक्टर दिखता है. I wrote a poetry actually, पहले अपने लिए लिखी थी मैंने, when I wanted to play for India, as I've said, and then अब वो सबके लिए applicable है कि हसरत थी, डिजायर, हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, that I'll become a star someday. तो हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे. तो स्टार शाइन बट इन द डार्क बैकग्राउंड. तो डार्क बैकग्राउंड क्या है? उनका हार्डशिप, उनका स्ट्रगल, उनका इनसिक्योरिटी, एंड इवन द फियर ऑफ अननोन फ्यूचर. सो दिस इज अ सिनेरियो दे आर इन, मोस्ट ऑफ देम. एंड उनका पर्सनल लाइफ भी सबकी ग्रेट नहीं. कुछ ही लोग हैं जो ठीक ठाक जिनका चल रहा है. यू कैन जस्ट काउंट देम, few of them actually, but mostly it is a complicated situation. So what I'm trying to say is, it looks like they are glittering, but the more up you get, the more lonelier you become. उसी का एक synonym. हाँ, but this is देखिए बाकी इंडस्ट्री में तो फिर भी still you can manage. यहाँ पे क्या है, it is a world ruled by illusion. मेरी 3 मूवी चलेंगी, मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा. I'll be like wow. And 3 मूवी फ्लॉप हो गई, people will not even recognize me. So this is what it is. तो आप एक दिन में सुपरस्टार बन जाते हैं, दूसरे दिन you are nowhere. तो ये जो इनसिक्योरिटी है, और ये वो इंडस्ट्री है आस्था जहाँ पे सबसे ज्यादा फेम, सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन, एंड इवन योर व्हाट यू कॉल्ड लग्जरीज यू विल गेट, द मनी यू गेट, और उतनी ज्यादा सबसे ज्यादा लाइन भी इस इंडस्ट्री में. तो lot of struggle, lot of I think competition is there. It is not easy. So अब this is what it is. But people are fascinated by these. But अगर मैं कभी potential नहीं देखता हूँ, and when somebody come to me कि I also want to become an actor or a star or whoever, and if I see तुमसे ना हो पाएगा, तो I have to tell them. तो फिर मैं प्लान भी पूछता हूँ, because motivating someone, astrologer are supposed to motivate people, but motivating someone unnecessarily is also a crime. Right, you need to give the right guidance. Absolutely, because अगर आपने डिजायर बढ़ा दिए और उसके अंदर वो नहीं है पोटेंशियल, तो उसका जो सेटबैक है उसका वो तो it will be bigger than that. Right. Very interesting. क्योंकि अभी तक ना मतलब I've never consulted someone for my career because mindset हमेशा से ये रहता है कि हो जाएगा, जो करना है you manifest it, you work hard for it, it will happen. But now I understand it's very important for your things also to be aligned along with yourself. Okay, so you already know that Happy Hour is into we're into offline dating. We help people meet people. Our only idea is to, as you mentioned, increase happiness in the world because हम इंसान social animals होते हैं, and we always need good people around us. So through our events we help people meet more people. तो हमारे viewers का भी इनफैक्ट ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होगा, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक इट कम्स फ्रॉम मी ऑल्सो, कि जब हम लोग शादी करने के लिए देखते हैं, वी लुक फॉर अ पार्टनर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आवर पेरेंट्स हैव इज कुंडली मैच करवानी है. सो सबसे पहले तो ये कुंडली क्या होता है, एंड देन व्हाई इज इट नेसेसरी इन अ मैरिज, एंड हाउ डज इट इवन मैटर? Yeah, so it is quite an interesting question because that is what mostly people they believe in love marriages. पहले लोग पूछते थे कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी. आप पूछते हैं तो मैं कहता हूँ यार ये अरेंज मैरिज क्या होता है, इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर. द रीजन बीइंग, अब मुझे फोन आते हैं ऐसा कि सर कुंडली मैच करा दीजिए, वी आर डीपली इन लव विद ईच अदर, और ये मैच नहीं हो रही है. तो देन आई आस्क देम इज इट लव मैरिज? बोले नहीं सर, हमारे पेरेंट्स ने इंट्रोड्यूस कराया था. सो व्हाट हैपेंस इज नाउ, अभी मैंने कहा अरेंज मैरिज नहीं
होती है, बिकॉज कहीं से भी प्रपोजल आता है, यू नो, वहाँ पे गर्ल एंड बॉय बोथ विल टेल देयर पेरेंट्स वी नीड टू नो ईच अदर मोर, तो वहाँ पे वो नो करते करते यस कर जाते हैं, यू नो. सो व्हेन दे नो ट्राई टू नो ईच अदर, दे ट्राई टू मोस्टली दे स्टार्ट लाइकिंग देम ईच अदर, यू नो, मोस्टली. तो वहाँ पे एक ऐसा है, बट यू शुड नो एस्ट्रोलॉजिकली कि वो जो लाइकिंग है, ये लाइकिंग का स्पैन कितना रहने वाला है. वो इन्फैचुएशन है, या इट इज लाइक इट्स अ लॉन्ग टर्म, सोलमेट, ऑफ कोर्स, यस. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आई हैव आल्सो स्टार्टेड यू नो 1.5 years बैक अबाउट मैट्रिमनी मैचमेकिंग. तो उसका आपने नाम है उसका एस्ट्रोमिलन रखा है, astromilan.com. सो एस्ट्रोलॉजिकली फर्स्ट यू नीड टू नो ईच अदर हु यू रियली आर. जैसे somebody will look at you and will say wow, it is like love at first sight. And I always say, you know, love is blind. Keep open your eyes, because you need to know a person beyond, you know, looks. 100%. And sometimes they say looks can be deceptive. It also implies for men. तो ट्रोलिंग शुरू कर देंगे, तो वैसे ही कम हो जाता है ना. मैंने कहा women ट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो it also implies to men also, you know, looks can be deceptive. So उसका जो real personality है, वो तो उसके डिजाइनिंग से पता चलेगा. The designing, the programming of the mind, जो एक हॉरोस्कोप बता सकता है. तो the moment you see a horoscope, तब आप उसको बताओ कि ये जो आपको रणबीर कपूर या शाहरुख खान लग रहा है ना रोमांटिक, ये एक्चुअली है नाना अंदर पाटेकर. से ही है सर. तो नाना पाटेकर की कुंडली है. आपने उनके भी रीड करी है? मतलब ये तो मैं नेम, मतलब आई डोंट वांट टू नेम दैट वे, बट यस ये तो मैं कैरेक्टर की बात कर रहा था. वो अग्नि साक्षी में तो 5 मिनट लेट आई, कहाँ रह गई थी, यू नो. तो बिकमिंग टू ऑब्सेसिव अबाउट थिंग्स और पीपल. सो ये चीजें आपको पता लग सकती हैं. ऑफ कोर्स यस. मतलब द मोमेंट आई विल सी और उसको मैं समझ जाऊंगा कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड यू आर, और हाउ वाइज यू आर, और हाउ हैप्पी यू. हॉरोस्कोप तो बर्थ पे बनता है ना, मतलब थिंग्स चेंज आल्सो विद टाइम. नहीं, फ्यू थिंग. देखिए पहले प्रोग्रामिंग है. अभी आपने सैमसंग की बात की थी, सैमसंग कभी आईफोन नहीं बन पाएगा, उसको आप अपग्रेड करते रहोगे अपने तरह से, और सेम गोज विद आईफोन. तो प्रोग्रामिंग तो वहां पे फिक्स है. लेकिन ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, गुड यू हैव ब्रॉट दिस इनटू पिक्चर, मैं जो व्हिच आई यूज विद एवरी ऑफ माय क्लाइंट. डेस्टिनी इज फिक्स, no one can change, but a change is change when you change. तो ये change कब होगा? और मैंने इसमें पोएट्री बनाई थी, अब क्या बताऊं. नहीं, वक्त के साथ जो मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चेंज. तो आप क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का. Everyone is waiting कि यार उनके प्लेनेट कब चेंज होंगे. तो आप क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का. जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी. तो एक एस्ट्रोलॉजर और स्ट्रेंजर आपको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा है कि यार दिस इज नॉट द वे टू यू. व्हाई यू आर सो सेंसिटिव, व्हाई यू गेट हर्ट लाइक दिस, यू नो, व्हाई यू रिएक्ट लाइक दैट, व्हाई यू थिंक लाइक दिस, व्हाई यू ओवरथिंक, व्हाई यू इंट्रोस्पेक्ट. मतलब बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड, यू एप्रीहेंशन इज अ राइट वर्ड. तो पीपल दे कीप ऑन थिंकिंग, ओवरथिंकिंग अबाउट थिंग, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. तो मैं अगर उनको पहले से रियलाइज कराऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार दिस इज राइट, ही इज राइट, एक्चुअली ये तो हमारा प्रॉब्लम है, मुझे इस पे काम करना चाहिए. तो ये जो रियलाइजेशन है ये एक एस्ट्रोलॉजर करा सकता है. तो आपने कहा वो तो फिक्स हो गया कुंडली, लेकिन एक दिन जब एक एस्ट्रोलॉजर आपको मिलके, जो स्ट्रेंजर है वो नो क्लू अबाउट यू, दैट इज द रीजन इफ एनीबॉडी कॉल्स मी और कम टू सी मी एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन के लिए, तो आई नेवर लेट देम टॉक. मेरा 45 मिनट्स का सेशन है. Out of that 15 minutes I will talk without even asking you who you are, why you are here, and what is going on, and what I am saying is right or wrong. I never ask that. I keep on saying whatever I wish to say without taking a break. And then I ask them, now you tell me who you are, what you do, and what you want me to check apart from what I could see till now, and whatever I've told you, I hope it is resonating with you so far. ऐसा लगता है disclaimer आ रहा है. तो then they say, yeah, exactly what you said was right, and this is why I'm here, and what you said, and even they come with a 4-page of questionnaire. They say you have covered it all. So that is the beauty of astrology. I wrote it once jokingly. Astrology is always right, but astrologers are left and right. So with the growing number of astrologer and look like you know, people take it more as a easy money making business, which is not true. Abhi ye because of thanks to podcasting. Now podcasting, you know, earlier like I used to do television, so I got famous because of my television shows, India or overseas. But now podcast is a television. This is a channel actually. Absolutely. So now everybody who sits here will say something about whatever, and maybe right or not right, but people feel, oh yeah, he knows it or whatever, depending on the way of communication. So now everybody is becoming famous, but people who are not right or not have a better understanding about the subject, they are trying to misguide people or showing them the wrong path, and that is not I right. think that's
that's a very, very critical problem that you've mentioned, because I think India runs on astrology. You look at apps, there is AstroTalk, which is doing so much on astrology, right? तो बहुत गाँव से लेकर बड़े बड़े शहरों से लेकर, the biggest of everyone believes in astrology, especially the people मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में. शायद हमारी जनरेशन कुछ कम करती है, but everyone does that. Quick question, feel free not to answer, but is there actually a way to figure out that this astrologer is right and he's making sense, and this astrologer is perhaps just a fraud who's here to make money? Especially apps, I don't want to name any app. I came across a few of my clients who are working for those apps, and I asked them. I didn't know about that, so I asked them then how you're taking care of your expenses. They were studying and whatever. They said we are working for this ABC app, and as an astrologer. So I said, but you don't look like astrologer according to your horoscope. They said no, they have given us some guidelines that if somebody comes, you say this is that, and then find That's a flaw. That's not how it works. Absolutely. So you don't know who is behind that technology. So that is scary. That's the reason in few years people will lose faith actually in going to astrologer, and that is something which really bothers me. That this is such a beautiful science, and which can be life changing, and the astrologer can be your friend for life. And if it is manipulated in this manner, then it's not a great thing. Right. But still there is like no such way जिससे आप figure out कर सकते हो यार this astrologer is the right one for me and this is not the right one, because if you look at it from my lens मुझे नहीं पता चलेगा किसी को भी देख के, not even from एक तो चेहरे से देखना चाहिए. चेहरा आपका मन का आईना है. People who are clear and happy, spiritual, clear conscious, they will look good, at least good in the sense not how handsome or beautiful somebody is. Energy, absolutely. Right. तो वो आपको जज करना आना चाहिए. That way. Then you start trusting a person. और वो पहले से ही स्केरी लग रहा है तो फिर उसका खुद का डिवोर्स हुआ है तो आपका डिवोर्स करवा ही देगा. No, you are right. ये होता है. I believe in that. Okay, coming to another very important topic that a lot of people, in general also talk about, being a मांगलिक. बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं. पहले के टाइम पे तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं थी कि एक मांगलिक की एक नॉन मांगलिक से शादी हो रही है. आपके टाइम पे होती है, बट उपाय this and that, lot of things in this aspect. First question, what is a manglik? Where is it coming from? What is the science behind being a manglik? Is it bad to be one or is it good to be one? If you can take us through that. देखिए मांगलिक individually there is no significance of manglik in a person's horoscope. Mars is a planet of energy, authority. Mars can make a person sportsman or woman. So manglik is Mars जिनका heavy होता है. Mars heavy light नहीं होता है. Placement of Mars. So there are 12 horoscope, and if you want I can explain that. There are 12 houses in a horoscope. Okay. जिसको हम हिंदी में घर कहते हैं. First house से लेके 12th house. उन 12 houses में placement of Mars in 5 particular houses makes a person मांगलिक. And South India में एक और second house भी है. तो 6 मतलब 50% people are मांगलिक. अगर आप if you like someone उसका वो अगर मांगलिक नहीं और आप मांगलिक हो तो उसका friend जरूर मांगलिक होगा. So what I'm saying is every third person becomes a manglik. So it is not a thing. It's very common. Yes. So first house, second house, South India. But first house, fourth house, seventh house, 8th house, and 12th house. The placement of Mars in these houses, person becomes a manglik. Very simple. छोटे से बच्चों को सिखा दीजिए तो वही बताएगा मांगलिक है ये horoscope या नहीं है. That way. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि when you want to marry someone. और आपको वो मिल गया अपना हैप्पी आवर वाला तो फिर क्या होगा, वो हैंडसम भी है, वो ब्यूटीफुल भी है, वो हैप्पी भी है, उसका एजुकेशन अच्छा है, फैमिली इज गुड, करियर इज ग्रेट, मनी इज गुड, लग्जरी इज वाओ. अब वो मांगलिक नहीं है तो फंस गए. तो मांगलिक की शादी मांगलिक होनी चाहिए. इन ओल्डन डेज जो आप कह रहे थे पहले लोगों को डर क्या था, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था वो एक कि अ मांगलिक पर्सन विल नॉट मैरी अ मांगलिक पर्सन देन वन ऑफ द पर्सन विल डाई. राइट. तो उसमें बोला लॉन्जेविटी विल बी हर्ट. ऐसा स्टेटमेंट है, बट वो आस्था वो हाफ स्टेटमेंट है. पूरा स्टेटमेंट है इफ अ मांगलिक विल नॉट मैरी अ मांगलिक पर्सन द लॉन्जेविटी वुड बी हर्ट ऑफ द मैरिड लाइफ. That means there is a scope of divorce. Not the person. No, मरेगा कोई नहीं. वो कब पैदा हुआ था, वो कहीं और पैदा हुआ था. तो इतना बड़ा myth है that we are breaking. Exactly. तो डर बैठा दिया मर जाएगा. तो कोई मर गया, मान लीजिए कोई मरा, एक्सीडेंट हो गया,
किसी का कुछ और हो गया अनफॉर्चुनेट किसी वजह से, बट उसको उन्होंने रेट कर दिया, Blame कर दिया। हाँ, तो वो तो अगर मांगलिक होता भी या नहीं भी होता, अगर उसकी एज कम थी किसी वजह से या जो भी, तो हो गया। अभी जैसे पैंडेमिक आया था, हमारे एज के लोग, हमसे कम एज के लोग, वो कितने लोग चले गए, तो उसका क्या कनेक्शन है? तो इट इज समथिंग व्हिच इज फियर फैक्टर। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में फियर फैक्टर इज ग्रोइंग मोस्टली नाउ, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा और आप पूजा करा लीजिए, और बनारस में 150 पंडित पूजा करेंगे, 1.5 लाख का खर्चा है या 5 लाख, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वॉच पहनी है, उसको आइडिया लग जाएगा हाउ कैपेबल यू आर। यस, तो वो है, बट दैट इज नॉट ए ग्रेट थिंग। बट मांगलिक को कुंडली मिला के शादी करना चाहिए एवरी पर्सन एक्चुअली। उसमें 2 सिस्टम है, एक तो मांगलिक चेक करिए, दूसरा कितने पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं अष्टकूट मिलान। 8 kinds of ways where you have to check। वो उसके अलग अलग है, मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी है, हेल्थ कैसी रहने वाली है, लव एंगल कैसे रहने वाला है, हाउ गुड दे विल बी जेलिंग टुगेदर, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो वो ट्रेडिशनल वे है। 36 पॉइंट्स हैं टोटल, उन 36 में कम से कम 18 तो मिलने ही चाहिए, तो वो आपको देखना ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं। तो उसमें भी देयर आर स्कोप्स जहाँ पे गुण, कोई एक स्टूडेंट बोलेगा अरे नहीं आपके तो 14 पॉइंट मिलते हैं, शादी हो नहीं सकती, लेकिन वो उसको फिर इनकम्प्लीट नॉलेज। देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी कि लड़की का मुंह लड़के के मुंह से आ गया तो ये दोष कैंसिल हो गया, या उसका नाड़ी का अगर है नक्षत्र का चरण अलग हो गया तो नाड़ी दोष कैंसिल हो गया। तो वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली। तो वो अपना शैलो नॉलेज से उनकी शादी जो हो सकती थी, उनके बेचारों के अच्छे 2-3 बच्चे होते, वो बेचारों की शादी नहीं करवा दी पहले। got it. So I think I'm getting a very new perspective about this. While you were saying that this is traditional matchmaking, I still believe that this approach is very modern, because ये जो गुण मैच करना है, जिसमें मेंटल लेवल है, कंपैटिबिलिटी है, हम मॉडर्न मैच मेकर्स भी यही करते हैं। मतलब हम भी यही देखते हैं, हम बस उसका नाम हमने एक अलग दिया हुआ है, बट आई स्टिल फील दैट the things are the same only. But I still feel that a lot of things are now changing in terms of matchmaking, in terms of finding a partner. And because we are at Happy Hour today, we always talk about कि जब आपको शादी के लिए अपना एक पार्टनर ढूंढना है, what are the things you need to keep in mind. Let's forget astrology, modern, traditional XYZ. मैं एक लड़की हूँ या कोई लड़का है, and if you're looking for a partner, especially in today's generation where people have become very assertive, acceptance कम है, tolerance कम है, how do people go about in the market looking for a partner? What do they need to keep in their mind? देखिए, me being astrologer, मैं तो हमेशा कहूँगा, जैसे कोई बॉर्डरलाइन डायबिटिक है और उसको डॉक्टर मना करता जा रहा है कि भाई स्वीट्स आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, और वो कह रहा है नहीं आई लव स्वीट्स, या किसी को बहुत एसिडिक का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का, और वो स्पाइसी फिर भी खाए चला जा रहा है, तो ये तो डॉक्टर जैसे बता रहा है आप नहीं मान रहे। सेम गोज विद कि नहीं, वी डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड स्टिल वी वांट टू हैव ए ग्रेट लाइफ। हो सकता है 50% चांसेस तो है, या तो मैच करेगा या तो नहीं करेगा, बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट मैचिंग दोज नंबर्स, बट एस्ट्रोलॉजी बियॉन्ड दैट। वो आपको अवेयर करा, जो मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोमिलन, हमने एस्ट्रोमिलन.com नाम क्यों रखा, कि इट इज प्री मैरिटल काउंसलिंग, नो योर पार्टनर बिफोर हैंड। बाद में तो सब आते हैं कि आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक एंड लव इज डेफिनेटली ब्लाइंड एंड आई फेल इन लव विद द रॉन्ग पर्सन एंड आई डोंट थिंक वी कैन बी टुगेदर। तो लोग सेपरेशन की बात करते हैं, डिवोर्सेस की बात करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के बाद भी दे ब्रेक। तो व्हाई? बिकॉज वो अब एक दूसरे को जान नहीं पाए। तो एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है रिलेशनशिप। इफ यू आस्क मी 25 years of my journey, relationship is my forte. I help you to understand who you are. और देखिए, शादी एक बार हो गई या मे बी यू लाइक समवन, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई उससे मत करो, वो तो मुझे पसंद नहीं। भाई पसंद तो आपको करना है, यू हैव टू लिव विद दैट पर्सन, बट मैं ये आपको अवेयर करा दूंगा हाउ टू डील विद हिम और हर। तो अगर आज आपको पता है कि यार आपको नहीं पता था, तो शादी से पहले आप काजोल की तरह बिहेव कर रही थी और मैं शाहरुख खान की तरह कर रहा था, शादी के बाद कौन सी मूवी के हाँ डर रही हूँ डर में थोड़ा सा, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन एस्ट्रोलॉजर आपको पहले से बता देगा ये हाँ करेक्ट कि ये डर वाला शाहरुख खान है या ये वाला शाहरुख खान, कुछ होता है एग्जैक्टली। तो बाद में जब आपको कुछ होगा तब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको पहले पता चल जाए कि यार ये मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, पंगा इन द सेंस आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, ये ट्रिगर्स है, यस, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएगा, ये कर जाएगी। So let's come to one very important question, because people take marriages very seriously and astrology about marriages very seriously. Can astrology predict the success or the failure of a marriage, and if it can, उसका accuracy level क्या होता है? देखिए, astrology according to me should never go wrong. Whenever a person has some challenges in his 7th house, the house of marriage, his or her, then there will always be some situation in married life.
फॉर एग्जाम्पल जैसे 7th हाउस में कोई सैटर्न है तो इधर इट विल बी क्वाइट ए लेट मैरिज और देयर विल बी लॉट ऑफ सिचुएशन इन कम्युनिकेशंस, यू नो, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कोल्डनेस इन रिलेशनशिप हो जाएगा. सो दैट इज हाउ इट इज. एंड मार्स इज प्लेस, जैसे आपने कहा मार्स है तो वो डिवोर्स करा सकता है. मार्स इज लाइक फायर, इट कैन ब्रेक एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. केतु है सिमिलर सिचुएशन. 8th हाउस इज हाउस ऑफ सस्टेनेंस ऑफ मैरिज. वहां पे अगर राहु है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. मूवीज में पुराने पहले दिखाते थे ऐसा, रुक जाइए ये शादी नहीं हो सकती, यू नो, तो आई हुई बारात लौट गई. अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट आया, उसने बताया कि यू नो मुझे शादी करनी है, नहीं हो रही है, और मैंने कहा आपका तो कुछ सिचुएशन लग रहा है. बोले हाँ मेरी शादी होते होते टूट गई. मैंने होते होते कैसे टूट गई? बोले कि हम लोग के 3 फेरे पूरे हो गए थे. मतलब ड्यूरिंग सेरेमनी, यस, 3 फेरे पूरे हुए. मामा जी को किसी बात पे गुस्सा आया, उन्होंने कुछ बोल दिया और वो दूसरी पार्टी को हर्ट कर गया, तो उन्होंने तोड़ दी फेरों के बीच में. और उसके 3 फेरों के बाद तो उसे हनीमून विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था और वो ब्रेक हो गया. तो I've never heard of this before. Absolutely. तो इतने ज्यादा सिचुएशन है. एक और मैरिज मैंने अटेंड की थी, उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन था. तो थैंकफुली आई प्लेड अ गुड रोल इन देयर, थैंकिंग मी फॉर दैट. वहां पे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ड्यूरिंग वेडिंग. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. और जो आप कह रही थी लैक ऑफ टॉलरेंस, लैक ऑफ पेशेंस, और लेट गो करना आता नहीं है, एंड वो रीड बिटवीन द लाइंस हो जाते हैं और असम्पशंस. मैं कह रहा था कि आई नो व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू मेंट, जो सोचा नहीं आपने आपके ब्याह पे मैं ही सोच रहा हूं. तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करती जा रही हैं. तो और ठीक है, तो 8th हाउस इज हाउस ऑफ सस्टेनेंस ऑफ मैरिज. वहां राहु आ गया तो प्रॉब्लम है. जुपिटर इन 8th हाउस मींस 2 मैरिजेस. राहु से क्यों प्रॉब्लम है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राहु? राहु इज अ प्लैनेट ऑफ डिसेप्शन. So it will deceive, or it is a planet of illusion. It will give you some illusion about something. You know कि I think you don't love me anymore. I think. तो उसे assume करके बैठा. Transparency नहीं है. Absolutely नहीं, उसे assume कर लिया. तो it is a malefic planet. 8th house में जुपिटर गया, 2 marriages. तो there are lot of things. और सबसे important है timeline. जैसे आपने वहाँ पे सब हैप्पी था वो आवर तक, और जब वो शादी हुई तो वो सब चेंज हो गया. शादी के बाद क्या चेंज हुआ? टाइम चेंज हो गया. वो आवर चेंज हो गया. वो कैसे पता चला? उसके हॉरोस्कोप से. तो somebody who was running a very good phase of his or her life, suddenly मान लीजिए उसके मून के ऊपर राहु का ट्रांजिशन आ गया. It happens once in 18 years. और राहु में मून की दशा आ गई और मून में राहु की, ये डिप्रेसिंग टाइम्स होते हैं. या कोई और आ गया तो वो इंसान फंस गया इमोशनली. मेरा एक सीरियल में एक डायलॉग था, मैं हमेशा बोलता था, क्राइम बेस्ड सीरियल था, तो उसमें मैं बोलता था जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है. दैट मीन्स अ पर्सन can behave completely like a different person because the placement of planet start influencing that person. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपकी आस्था मंगल की दशा चल रही है, फिर आपकी गुरु की दशा आएगी, फिर आपकी राहु की दशा आएगी. Why we use the word दशा? दशा मतलब मन की दशा. The planet will start impacting you or influencing you the way they are. तो आपका मन स्थिति बदल जाता है according to that particular planet. तो वो इंसान जो आपको लग रहा था यार ये कहता था मैं तुम्हारे लिए चांद तारे, अब तो कोई नहीं कहता कर तोड़ के लाऊंगा, और वो मतलब बाहर से वो सब्जी तोड़ के नहीं ला पा रहा. तो दैट इज हाउ इट इज. तो उसका दिमाग चेंज हुआ. तो वक्त खराब हुआ तो क्या खराब हुआ? दिमाग खराब हो गया. तो सेम इंसान जो लग रहा था अमेजिंग पर्सन है, वो उसका बिहेवियर चेंज हुआ, एंड देन आपका हार्ट ब्रेक हो गया. तो मैं इसीलिए एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है. जो आप कह रही थी कि क्या इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. व्हेन यू लेट दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन आज से 2 साल के बाद, ये 1.5 साल ऐसे आने वाला है व्हेन दिस पर्सन विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली. वो खुद ही डिप्रेस होगा, उसको खुद नहीं पता चलेगा कि व्हाट ही इज सेइंग और शी इज सेइंग एंड हाउ टू बिहेव और व्हाट नॉट टू से. एब्सोल्युटली. तो अगर आपको ये बात पहले से पता है तो फिर आप क्या करोगे? यू विल इग्नोर कर दोगे. यू विल लेट दोनों. जिसका टाइम खराब है वो भी सोचेगा यार मेरा भी टाइम खराब हो गया, शुरू हो गया, तो चलो आई विल नॉट रिएक्ट और आई विल not take it to my heart, क्योंकि उसको पता चल गया. That is the beauty of astrology, knowing it and awareness. Absolutely, awareness से उसको सब कुछ क्लियर हुआ. तो that is how astrology can play a great role. और बैड मैरिड लाइफ है तो आपको फिर केयर करना पड़ेगा. तो मेरे पास जब कोई आते हैं कि नो आई एम डीपली इन लव विद दैट पर्सन, मैं कहता हूँ देखिए वो पर्सन कोई भी हो, आपने मुझे उसका नाम भी नहीं बताया एंड आई डोंट हैव हिज और हर हॉरोस्कोप, लेकिन आपके हॉरोस्कोप में ऐसा है कि यू नीड टू बिहेव डिफरेंटली, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. कि आपके हॉरोस्कोप में ऐसा है कि जरा सा भी आपने ऐसा किया तो ब्रेक होने के चांसेस हैं, बिकॉज इन योर हॉरोस्कोप इट इज इंडिकेटिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिवोर्स. तो ये बात अगर उसको पहले से पता है तो पर्सन शुड be more careful. तो ये भी प्रेडिक्ट करा जा सकता है. Absolutely, every incident of your life. तो ये बहुत important है. Got it. Okay. जब 2 लोगों की
कुंडली मैच कराई जाती है और अगर मिसमैच होता है, लाइक यू नो सेड इट बिफोर कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि यार नहीं, मतलब कुंडली मैच नहीं हो रही, ये शादी ना हो तो बेटर है, कैन टू पीपल स्टिल गेट मैरिड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट आई रियली लव दिस पर्सन एंड इट्स ओके, वील फिगर आउट द प्रॉब्लम्स? क्या वो एक सही स्टेप है लेना कि नहीं लेना चाहिए एंड यू नो यू शुड रियली लिसन टू द पेपर्स? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए दो लोगों का इमोशन अटैच हो गया, राइट, एंड ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कहते कि ये शादी नहीं होनी चाहिए एंड दे आर डीपली मैडली इन लव विद ईच अदर, तो ये तो क्राइम है एक्चुअली इन अ वे। बट इसमें दो चीजें हैं, वो दोनों लड़का और लड़की हाउ इवॉल्व दे आर in the relationship in their own as mindset. humans. Yes. Evolve here I also mean how spiritual they are, because anyone who has a high spiritual connect, you know, daily prayers and meditation, that's the reason meditation plays a great role actually. People who meditate, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, you know, एक पोइट्री थी मैं भूल गया, उसकी दो ही लाइन याद है कि इन सितारों से ऊपर कुछ तो है, इन लकीरों से ऊपर कुछ तो है, तो वो डिविनिटी जो है वो that is beyond. Yes, so that can secure that provided you are evolved. और अगर बोलता नहीं I believe in universe, I have no time to pray, तो फिर वो नेचुरल जो ट्रांजिशन होगा कि वो टाइम खराब होगा, दिमाग खराब होगा, रिफ्ट होगा, इंडिफरेंसेस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, सेपरेशन हो जाएगा। बट व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द सिचुएशन एंड यू आर वाइज इनफ विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू हैंडल द सिचुएशन, देन यू कैन। तो आपके सवाल का जवाब है डिपेंडिंग ऑन दोज टू पीपल दैट हाउ व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। Got it. Very interesting. Okay, now coming to a very important thing that's going on right now. बहुत से लोग हमारी जनरेशन में शादी नहीं करना चाहते, डिफरेंट रीजंस, बट एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि डाइवोर्स रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, लोगों की आपस में बन नहीं रही। मतलब हमारे इतने लोग हमारे इवेंट्स पे आते हैं जिनका 10 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में डाइवोर्स हुआ है विद इन गेटिंग मैरिड, एंड दैट इज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ कंपनी लाइक अस, जहाँ पे हम सिर्फ यही ट्राई करते हैं दैट वी स्प्रेड लव एवरीवेयर, येट द डाइवोर्स केसेस आर राइजिंग सो मच। सो अ क्वेश्चन लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी कि आपको क्यों लगता है कि इतने डाइवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर ऑफ कैमरा, बट वी कैन ब्रिंग दिस टॉपिक वंस अगेन इन टर्म्स ऑफ यू नो द डाइवोर्स रेट्स राइजिंग ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए बिन फेरे हम तेरे, ऐसी शायद कोई मूवी आई तो ये रिलेशनशिप जो है ना, ये बहुत बड़ा, अभी तो पीपल आर इवन एंजॉयिंग लिव इन रिलेशनशिप, बट लिव इन रिलेशनशिप भी दे आर नॉट लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, सो इट इज नॉट अबाउट फेरे और बिन फेरे, यू नो, मतलब मैरिज और नो मैरिज, इट इज अबाउट टू पीपल लिविंग अंडर द सेम रूफ, वो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो आपने कहा कि द क्वेश्चन अबाउट द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ डिवोर्सेज और सेपरेशन, इसमें सबसे बड़ा रीजन इफ यू आस्क मी, प्लेनेट तो वही है, हजारों सालों से वही स्टोरी चल रही है। पहले तो मतलब टेढ़ा है पर मेरा है, यू नो, जिंदगी भर का कनेक्शन है, ग्रैंड पेरेंट्स तो ये क्वेश्चन ही नहीं था ना, ही नहीं, एक बार आप हो गए तो यू आर डन फॉर लाइफ, यू नो। तो समाज से डरते थे लोग, सोसाइटी से, भगवान से डरते थे, परिवार से, पेरेंट क्या सोचेंगे, नहीं आई हैव टू एक्सेप्ट, ऐसा काट लेते थे, मेल और फीमेल बोथ। अब नहीं है, ये क्या शिफ्ट हुआ है, एनर्जी शिफ्ट हो गई। अभी जो मास्कुलिन एनर्जी थी वो फेमिनाइन एनर्जी के अंदर एंटर हो चुकी है। Feminine energy are carrying more masculine energy and they have become more authoritative. People are talking about women empowerment. If you ask me as a astrologer, यहाँ पे ट्रॉलिंग शुरू होने वाली है, एज ए एस्ट्रोलॉजर, ये ग्रोइंग मैस्कुलिन एनर्जी इन फेमिनिन यू नो सिचुएशन इज मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट। अब हो क्या रहा है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा आई टू हैव अ डॉटर, आई आल्सो वांट हर टू बी इंडिपेंडेंट, मेरी वाइफ है, क्योंकि उनको भी एक यू नो एक रहना चाहिए, एक पर्सनालिटी, अथॉरिटी, व्हाटएवर, एंड दिस इज हाउ इट इज। बट वो Men have not changed. मैंने एक बार ये लिखा था बहुत साल पहले, शायद 10 साल हो गए होंगे, एक ब्लॉग में लिखा था आस्था की, वीनस इज द न्यू मार्स, men are you listening? तो वीनस हैज चेंज, men is still the same. तो ये जो मैन का जो चेंज नहीं हो पा रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है, वहां पे पहले होता था कि यू नो आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर बॉस, ऐसे, अब ऐसे नहीं, आई डिसाइड, यस, अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों को पैरेलल में आना चाहिए। इज इट बिकॉज वुमेन आर मेकिंग मनी? यस, वन इज एजुकेशन, पहले नहीं होता था 12th पास है, शादी कर दो, बच्ची बड़ी हो गई, पहले तो आइडिया ही था कि बस शादी करनी है, एब्सोल्युटली वही था कि ये शादी होगी, बच्चे होंगे, घर संभालेगी, ये एक वुमेन की आइडेंटिटी इंडिया में मोस्टली ऐसी थी। अभी इट हैज चेंज,
टोटल सिस्टम चेंज हो गया है, तो नथिंग रॉन्ग विद इट, आई एम हैप्पी विद इट। आधी आबादी कहते हैं उनको, एंड दैट इज हाउ इंडिया इज ग्रोइंग आल्सो बिकॉज ऑफ वी हैव गॉट इंटेलिजेंट विमेन पावर इन प्लेस। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, पहले डिपेंडेंसी थी, अभी वो खत्म हो चुकी है। एंड मेनी केसेस आई नो विमेन आर अर्निंग मोर देन मेन हस्बैंड, तो फिर तो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, तो ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है कि विमेन को थोड़ा सा वाइज होना चाहिए यहाँ पे, मैन को भी, ट्रोलिंग बचा रहा हूँ क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग इज, क्योंकि उसको अगर नहीं है, तुम बदल जाओ, अगर वो नहीं बदल रहा है तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरे पास जब काउंसलिंग के लोग आते हैं कि वी हैव डिसाइडेड टू सेपरेट, तो मैं कहता हूँ देखिए, पीपल कम टू यू फॉर दैट आल्सो, ऑफ कोर्स यस, लास्ट होप के साथ कि एक बार मिल लेते हैं चल के। मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारे डिवोर्सेस बचाए जिंदगी में। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि क्या कहते हैं, एक वर्ड यूज होता है आजकल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो मैं भी नहीं चाहता कि आप अनहैप्पी रहो जिंदगी भर। लेकिन मैं अगर ये रियलाइज करा दूं कि दिस पर्सन ये टॉक्सिक नहीं है, सिचुएशन टॉक्सिक है, ये टाइम, ये हैप्पी आवर जो आपका, ये टॉक्सिक आवर जो बन चुका है, ये कब चेंज होगा, ये अगर मैं बता दूं तो आपका एक्सेप्टेंस आ जाएगा। फिर उसका बिहेवियर, उसका माइंडसेट, जो आप अभी तक हर बात पे आप आर्ग्यू करते थे, और वो तो बॉर्न लॉयर है, लॉयर से आर्ग्यू कर रहे हो, तो ये अगर आपको पता है तो फिर आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे। और जब आपको पता था कि यार ये मेरा क्यों दिमाग खराब हुआ था, क्योंकि टाइम खराब था, तो ये आपको इंट्रोस्पेक्शन हुआ, तो आप कहेंगे, तो आप डायरेक्टली वो ब्लेम टाइम पे डाल दोगे उस इंसान से, बट इट इज अ फैक्ट एक्चुअली, इट इज द बिहेवियर। So mentally I'm saying कि then you will start accepting. अच्छा, you means the other person, I thought मुझसे कह रहा हूँ, okay, the person will start thinking that way कि नहीं यार ये शायद इंसान ठीक है, उसको लगता है हाँ यार he is right, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने ही बताया कि भाई साहब ये 6 महीने पहले ये हुआ था, 2 साल पहले आप लोग हनीमून में गए थे, और उसके बाद मतलब आपको उसकी याद भी नहीं आती। तो ये टाइम के साथ साथ सब होता है। तो वन यू मेक देम अवेयर, तो डिवोर्स के लिए वो लोग अपना माइंड चेंज करते हैं। एंड आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे आर लिविंग टुगेदर स्टिल बिकॉज दे मेट मी एट द राइट टाइम एक्चुअली, क्योंकि उनको समझाने वाला, पेरेंट तो समझाएंगे, रिलेटिव तो आएंगे, कोई बात नहीं बेटा काट ले, कोई कहेगा नहीं मारो गोली, तू आजा सामान पैक करके आज ही आजा, तो डिपेंड करता है कौन सी कैसा एनवायरमेंट है घर में। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जो एक्सचेंजर है, अगर वो बताता है, जैसे आपने कहा एस्ट्रोलॉजी और नो एस्ट्रोलॉजी फर्क, तो ये बहुत बड़ा रोल है एस्ट्रोलॉजर का। लेकिन हाँ ये भी है कि एस्ट्रोलॉजर का अगर खुद डिवोर्स हुआ है आज तक, तो भी कह रहे किसी ने शादी करा दी आपकी, ये तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अब जो उसको बचा भी था 10% वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। उसका मंगल वहां पे है और ये तो सुधरेगी नहीं, और ये इसके तो ये आपके हस्बैंड के तो अफेयर चल रहे हैं, उसका बेचारे का एक भी अफेयर नहीं है। अब एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया तो उसके सबकॉन्शियस में अटक गया। और कई डिवोर्स तो एस्ट्रोलॉजर करा देते हैं कि ये तो कैरेक्टर ठीक नहीं लग रहा आपके हस्बैंड का मैडम, और इतनी सी एक बात बोल के ही सामने वाले का तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। देखिए वीनस इंसान को लव, रोमांस, रोमांटिक बना सकता है, बट दैट डजंट मीन कि हर कोई इंसान हर एक से रोमांस करने लगे। हो सकता है द पर्सन इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, हो सकता है द पर्सन इज फॉन्ड ऑफ लग्जरीज और समथिंग लव इन ऑल एस्पेक्ट्स। एब्सोल्युटली, जो लोग ग्लैमर में हैं, फैशन सेंस अच्छा है, उनका भी वीनस स्ट्रांग होता है। तो दैट डजंट मीन कि दे आर फ्लर्टिंग अराउंड और डूइंग समथिंग। तो ये किस तरह से आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं, उसमें बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो डिवोर्स बचाए जा सकते हैं प्रोवाइडेड यू मीट द राइट पर्सन एंड अंडरस्टैंड द एंटायर सिनेरियो, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने कहा नहीं गेट लॉस्ट एंड वी आर डन, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो एटलीस्ट एक चांस तो देना चाहिए। अंडरस्टूड। बिकॉज़ कहते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी, मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट ब्रोकन ऑन अर्थ। So people are breaking it. But you still believe that marriages are made in heaven? I believe in that because कोई इंसिडेंस नहीं होता। मैं कभी भी, एक वर्ड है उर्दू का इत्तेफाक, इत्तेफाक पे मैं बिलीव नहीं करता। और इत्तेफाक से इत्तेफाक के 2 मीनिंग अगर आपको बताऊं तो, एक है कि इत्तेफाक मींस बाय चांस, यस, और दूसरा मीनिंग है आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखती, यू डोंट एग्री विद मी। तो मैंने एक वर्ड पे पूरी पोएट्री बनाई थी, तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है। Oh, that's very nice. I think you should start, pursuing your career in poetry now because कई बार मेरी फीस बहुत ज़्यादा है। I charge 36,000 एक हॉरोस्कोप का, और उनको थोड़ी देर लगता है कि ये हम मुशायरा सुनने आएंगे। बट नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ऐसा नहीं लगता है बिकॉज इट इज रिलेटेबल। पोइट्री जो है मैं किसी की नहीं सुनाता, अपनी सुनाता हूँ। तो व्हेन यू क्रिएट अ पोइट्री, व्हेन यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, द फिलॉसफी, तो वो एंगल से मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। बट या पीपल अंडरस्टैंड दैट। नहीं, जितना मुझे समझ आया, आई थिंक आपका वीनस स्ट्रांग होगा क्योंकि यू वेरी क्रिएटिव।
Okay, I think I'll stay back to my field only. ठीक है. So moving on, a lot of people, you know, believe that practical factors like communication, like understanding, ये सब चीजें एक relationship को बहुत ज़्यादा define 100%, करते I हैं. totally agree with it. So, do you think that these things sort of challenge the astrological predictions in any of the way, or do you think that they just go hand in hand together? देखिए, आपको लगता है कि ये इंसान का कम्युनिकेशन अच्छा है और वो इंसान तो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी? Exactly. वो एस्ट्रोलॉजी की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है. जैसे मैंने कहा, the way you think you are, you don't believe in astrology, but this is the way you think. The moment I will see your horoscope, I will tell you exactly this is how you think because of this reason. Yeah. So जो इंसान जैसा है वो उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से है, तो प्रोग्रामिंग कौन बताने वाला है? एस्ट्रोलॉजर बताने वाला है. तो that is how it is. So basically, this goes hand in hand. Absolutely. But मैं आंसर अभी देता हूँ. आपके जो क्वेश्चन का एसेंस है वो है कम्युनिकेशन. It is the most important thing to save any marriage, any kind of relationship. And communication में भी लोग misunderstand करते हैं. You know, yeah, we talk everything, we discuss everything. तो talk everything में भी sometime you need to know what not to say and how to say. तो they tend to go overboard और उसमें argument हो जाता है. जैसे मर्क्यूरी कम्युनिकेशन को रूल करता है, थिंकिंग को रूल करता है, प्लानिंग को रूल करता है. स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी जो मैंने कह रहा था कि it makes a person totally perfectionist or they have a tendency to go deep into things. तो उनका कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. I know what you are saying. तो वो जो assumptions है उनके वो प्रॉब्लम करेंगे. मर्क्यूरी also make a person lawyer, तो argumentative हो जाएगा वो. But these are form of communication, but bad form of communication. Then what is the right form of communication? Yeah. Friendliness, humorous. They are the right form of, you know, कि अगर मुझे कोई बात आपकी पसंद नहीं है, फिर भी मैं उसको एक ह्यूमर एंगल से उसको कह सकता हूँ. Absolutely. Very interesting. जैसे मेरी वाइफ कभी चाय बना के लाती है, अभी तो आई एम मैरिड सिंस डिकेड्स, तो मैं कहता हूँ यार एक मिनट इसमें थोड़ी सी उंगली डाल दोगी क्या? बोली उंगली डाल दोगी? मैंने कहा चाय मीठी हो जाएगी. वो चीनी डाला बोल गई. तो दैट इज हाउ. और मैं कहता क्या बना के लाई हो तुम? You know? हाँ, कितना फर्क है इन दो चीजों में. That I absolutely agree. Okay, I think very long podcast we've had so far, because I personally feel that the career you are in is very interesting. It's very intriguing. So, do you want to share some incident? It can be an incident of any sort where you felt कि astrology से भी किसी की जिंदगी बदली जा सकती है. Like I know that you have saved marriages, which is great because I am a very pro marriage person. I'm pro relationship. But ऐसा कोई इंस्टेंस कभी, you can choose not to take names, but ऐसा कोई इंस्टेंस कभी हुआ जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी की लाइफ चेंज हुई या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ किसी के साथ? देखिए, मैं तो आई कैन नरेट hundreds of incidents like that because जैसे मैंने कहा relationship is my forte, and that's the reason I'm into matrimony also now, because it is a great responsibility towards a person, and when people trust you, then they will also follow it. So because of giving the right suggestion, not what you, I never say what you want to listen. I always say what you need to listen. Sometimes people they don't even like me after talking to me because क्या होता है कि human nature क्या होता है, they want to listen only good things. और मेरा क्या है, when I'm meeting someone whose dad is a billionaire and I'm blaming the daughter of the billionaire that the situation of your marriage is happening because of you, so she will not feel good about it. But I have to say it because I have to be honest. और मेल के साथ भी होता है. जरूर नहीं कि मैं see I'm not against women here. जैसे मैंने कहा कि you know I'm also married. तो वो podcast वाइफ भी देखेगी. तो what I'm saying is, you know, men also need to understand that it is a different world altogether. They need to have a better acceptance. देखिए, मैं एक वीडियो मेरा जब भी ये मैं लाइन बोलता हूँ वो वीडियो वायरल हो जाता है और वो स्टेटमेंट है हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ. और ये क्यों वायरल होता है मैं बताता हूँ. सारी वाइफ कर देती हैं फॉरवर्ड और उसके बाद आशा जो ट्रोलिंग शुरू होती है हस्बैंड्स कि डूड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुझे पता है वो कौन है? एक ने लिखा वो नागिन है. यू नो, तो ऐसे ऐसे ट्रोल गालियां भी आती हैं. तो ऐसे आते हैं. तो मुझे लगता है कि मेन आल्सो नीड टू चेंज. इट इज दे नीड टू एक्सेप्ट इट. इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. अब भाई आपसे ना हो पाएगा. ये मौसम बदल चुका है एंड यू नो मैं हमेशा कहता हूँ यू नीड टू यू नो understand the situation and work towards it to make your life a better life. This is what it is. तो अगर आपको हैप्पी आवर बनाना है, you need to understand that every moment is happy. इसीलिए मैंने कहा कि खुश रहने से बढ़कर एक ही लाइन है, जो खुश है वही खुश नसीब है. जो खुश है वही खुश नसीब है. तो learn to be happy. You know, एक ही जिंदगी है, हंसकर गुजार लो. एक ही जिंदगी है, हंसकर गुजार लो. और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाएगी. और मैंने लिखा कि माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी,
पर जिंदगी जरा सी है, ये भी तो मुश्किल है। तो वन लाइफ, मेक इट ब्यूटीफुल, मेक इट मीनिंगफुल, मेक इट हैप्पी बाय हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर एक्सेप्टेंस, बेटर टॉलरेंस, लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर एंड शोइंग योर लव एंड अफेक्शन। बिकॉज एक्सप्रेशन भी एक प्रॉब्लम है, जो आपने कम्युनिकेशन बोला था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल एक्चुअली। कि वो ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, अरे क्यों बोलना चाहिए था ना, तभी तो मैं भी कुछ समझता और मैं भी कुछ कहता, तुमने कहीं नहीं, तो गाने की लाइन थी कर। बट यू हैव टू कम्युनिकेट। पहले तो आंखों में इशारा हो गया, अब तो बोलने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तो समझाओ भाई, जेस्चर से, लव से, केयर से, दैट इज हाउ यू हैव टू बोथ वेज, मेन और वुमेन। तो चाहे वो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हो, इट इज मेंट फॉर एन आवर और मे बी फॉर एंटायर लाइफ, यू हैव टू पोर्ट्रे योर इमोशन। अब वो टाइम नहीं है कि मेरी पोइट्री है, वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। Wow, very, very interesting. I love the positivity that you've been throwing in this podcast throughout. Just one quick question: how old should a person be before he wants to consult an astrology, and does age even matter in this? किस एज पे आप शुरू कर सकते हो एक कंसल्टेशन? 4 years old। पहले क्या होता था, जो हमको 20 साल में जो नहीं पता था, आज 6-7 साल के बच्चे को पता है। यू गिव मोबाइल फोन, छोटा सा बच्चा, टॉडलर्स, उनको पता है यूट्यूब कहाँ पर है, उनको पता है वहाँ पे कार्टून कहाँ पे आने वाला है। तो दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट पीपल। तो पहले तो मैं कहता था कि भाई आज से 15 साल पहले की 12 साल का 14 साल का बच्चा होगा, देन यू कैन शो द हॉरोस्कोप एंड गेट देम गाइड यू अबाउट उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, कौन से सब्जेक्ट या कौन सा करियर बन सकता है। अभी वो बच्चा 5 साल का भी नहीं है और वो 15 साल हो चुका है। तो किड्स हैव ऑलरेडी, दे आर बोर्न इंटेलिजेंट किड्स। एंड नॉट ओनली दैट, अगर मैं पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलता हूँ ऐसा, बिकॉज वही बच्चे बड़े होके एक हस्बैंड और वाइफ बनने वाले हैं। तो मोस्टली क्या होता है, वी रेज अवर किड्स द वे वी आर, एब्सोल्युटली नॉट द वे दे आर। आई एग्री। एंड एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन साइकोलॉजी और ओन फिलॉसफी एंड ओन हॉरोस्कोप। अगर एक बच्चा जो बेचारा बहुत ही सेंसिटिव है, उसको आपने डांट के और बहुत ही कंट्रोल मैनर में आपकी स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन की तरह उसको ग्रो किया, दैट बच्चा विल बिकम इंट्रोवर्ट। एक बच्चा जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, ऑथोरिटेटिव है, उसको भी आपने डांट के प्रेशर में बड़ा किया, ही और शी विल बिकम रिबेलियस। तो यू डोंट नो और फिर उसकी कौन सी वीकनेसेस है। तो पेरेंट प्लेज अ ग्रेट रोल। अगर आपको मुझसे पूछे कि हाउ टू मेक श्योर दैट इन फ्यूचर वी गेट गुड वाइफ एंड अ गुड हस्बैंड, नर्चर देम व्हेन दे आर यंग इनफ। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर, मुझे एस्ट्रोलॉजी सच ए, ठीक है, इज गेटिंग ए बैड नेम बिकॉज ऑफ रील्स एंड पॉडकास्ट, बिकॉज नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग फेमस, बट इट इज नथिंग रॉन्ग विद बिकमिंग फेमस, बट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। यू नो क्या क्या रेमेडीज लोग बता रहे हैं, यू नो जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, इट हैज नो मीनिंग, नो सेफ, दे आर क्रिएटिंग मोर सुपरस्टिशन इन इंडिया एंड दैट इज समथिंग व्हिच हर्ट्स मी अ लॉट। नंबर्स की बात करते हैं, कौन सा नंबर, यू नो यू आर नंबर 6, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। जब कैलेंडर चेंज हुआ था, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन से पोप ग्रेगोरी 13, उसने कहा कि हम नया कैलेंडर बनाते हैं एंड इट विल बी इन सिंक विद वेदर एंड ये, तो चेंज हुआ। मैं पोप ग्रेगोरी है, पहले अप्रैल से होता था, हाँ, तो फिर 1 जनवरी आया, तो उसने चेंज किया। और ट्रेड, सब ट्रेड होना चाहिए। श्रीलंका से स्पाइसेस मंगाए थे, 15 जून को भेजना, उसका कैलेंडर अलग था, आपका अलग था। इंडिया में हमारा अभी भी वो विक्रम, so you don't believe in numerology? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो क्या हुआ, तो आज हमने बात करी, ये बात है 1500 समथिंग की। 1472 में शायद कैलेंडर बदला था, फिर ब्रिटिशर्स ने एप्लीकेबल किया, जहां जहां वो लोग रूल करते थे, और पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो गया। उसके कई साल हुआ था, आई थिंक 1582 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इतने साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब वो एप्लीकेबल हुआ, तो मालूम है आज अगर 5th of October था, तो कल क्या होना चाहिए, 6th of October, लेकिन वो 16th हुआ। 11 डेज उन्होंने इरेज कर दी। तो आप उस पे गाना गा रहे हैं कि मैं नंबर 5 और नंबर 6 हूँ, और चलो ये तो चलो फिर भी ठीक है। लोगों ने नेम की स्पेलिंग भी बदलना शुरू कर दी अकॉर्डिंग टू दैट नंबर, वो जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। एंड टेल मी वन थिंग, यू आर इंडियन, बोर्न इन इंडिया, तो इंडिया का कैलेंडर क्यों एप्लीकेबल नहीं कर रहा? जो हमारा विक्रम संवत कैलेंडर है, दिस इज ए 2081 ईयर, आप 2025 सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां 2081 चल रहा है। तो वो कैलेंडर जो वेस्टर्न कैलेंडर है, जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं था, वो था फॉर द फेथ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ट्रेड और एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑन द सेम पेज, वो एक कैलेंडर एप्लीकेबल हो गया, नथिंग रॉन्ग विद इट। बट आप उसके हिसाब से नाम की स्पेलिंग भी चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग व्हिच हैज नो मीनिंग। बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दीस, यू नो, उन्होंने जनरलाइज करा हुआ है कि नंबर 4 ये है, नंबर 2 वेरी ग्रेट है, नंबर 9, नंबर 8, ये सबसे बड़ा
फेक बिजनेस है आज की डेट में, इफ यू आस्क मी। और सबसे आसान है न्यूमरोलॉजी सीखना, और उसका प्लेसिबो इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग एग्जैक्टली यार दिस इज हु आई एम। अरे पूरे प्लेनेट है आपकी कुंडली में, दशाएं चल रही हैं, नक्षत्र कौन सा है उसको साइड करके नंबर पे चल रहे हैं आप, तो बहुत ही शैलो लेवल पे कहानी चल रही है। तो दिस इज समथिंग एंड दैट्स द रीजन पीपल आर लूजिंग फेथ गोइंग फॉरवर्ड। ट्रू, 100%। मूवीज के टाइटल चेंज कर देते हैं लोग, फिल्म, और वो मूवीज सब हिंदी की मूवीज हैं, और नाम किसका चेंज किया इंग्लिश में? कोई लॉजिक है? मैंने आपका नाम आस्था है, इतने आस्था से आपका नाम रखा था मैंने, आस्था, और आपने उसमें 2 S और 2 T और 2 H लगा दिए। अरे तो फिर भी नाम तो मैं आस्था ही बुलाऊंगा, या आप कहेंगी कॉल मी आस्था विद 2 T। No, but this happened, मतलब मेरा नाम भी बचपन में सौम्या था, और सौम्या के बाद like when my mother consulted someone, उन्होंने चेंज करवा के मेरा नाम आस्था रखवाया, because they mentioned कि अगर आप इसका नेम AA से रखोगे, तो मेरा तो entirely change हुआ था, but they said that if you keep her name with a AA, she's going to become a public speaker, which actually happened, but I don't know how relatable it is. Astha, it is because you had Astha in Astha. आपका placebo effect हुआ कि yeah, this is something, now I have a better name. But अगर मैं आपका horoscope देखूंगा without even knowing you who you are, I will tell you exactly this is your track and this is what you are doing, you will be doing, and this is, तो ये ऐसा नहीं कि नाम बदल लिया और आप बनना था डॉक्टर और बन गए एक्टर। this is not the case। हाँ, मतलब even I still don't believe in this कि ऐसा भी हो सकता है। But it is a good name, anyways it is a good name। हाँ, अगर आप कुछ और टेढ़ा मेढ़ा नाम रख लेती then I would have commented। हाँ, then I would have not kept it only। मैं बड़े होके चेंज करवा। आपका बिजनेस ही पूरा आस्था पे एक्चुअली। True, 100%। नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो फिर कुछ भी नहीं है। Do you think that tarot card reading is also a part of astrology? देखिए नहीं, इट इज अ डिफरेंट साइंस। वो मोस्टली इट वर्क्स ऑन इंट्यूशन, और वो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कार्ड है। बट डज दैट वर्क शॉर्ट टर्म के लिए कि मेरा ये कल मीटिंग है, क्या होने वाला है, तो एक कार्ड देख के कोई बता सकता है ये चीज, एंड इज इट एक्यूरेट फॉर आवर व्यूअर्स? डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर दैट टैरो कार्ड रीडर इज, बिकॉज़ ये साइकिक रीडिंग है, इट इज नथिंग, उसमें प्लैनेट नहीं होते। वो कहते हैं एरीज का कार्ड निकाल रही हूं मैं, वो एरीज कहां से आया? एरीज है ही नहीं। टैरो में ये थोड़ी होता है, टैरो में देयर आर नो नंबर्स, टैरो में देयर इज नो ज़ोडिएक। वो तो आपने ये कार्ड, और मैं आपके बिहाफ पे मैं ही कार्ड उठा रहा हूँ टीवी में, मेरा वो तो आप उठाएंगे, उसमें एनर्जी चलती, तो सब ये धंधा चल रहा है सब। दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग, बट it doesn't have that level of depth जो astrology you can't match anything with astrology. Astrology is completely your understanding about your entire journey and knowing yourself better. तो mostly अभी कई extramarital affair हो रहे हैं because of tarot card reader। मेरे एक फ्रेंड थे, बोले कि आई एम इन लव विद दैट पर्सन एंड ही इज मैरिड ऑलरेडी। तो मैंने कहा यार बड़ गड़बड़ है भाई साहब, कहीं नहीं रहेंगे आप। तो किसी ने मुझे मेरे एक मोटिवेशनल टॉक में पूछा था, कॉर्पोरेट इवेंट था, इज एस्ट्रोलॉजी दिस एक्स्ट्रामैरिटल गुड? पब्लिक में माइक में पूछ रहा है। व्हाट इज दैट? तो मैंने कहा इट इज वेरी गुड अंटिल यू आर कॉट। So, अभी टैरो की वजह से एक्स्ट्रा मेटल कैसे होते हैं कि वो कहेगा आई एम इन लव विद समवन, फोन पे पूछ रहा है टैरो कार्ड से, या यू हैव फाउंड योर सोलमेट। एक्स्ट्रा मैरिटल वाला पर्सन इज अ सोलमेट। एब्सोल्युटली। तो अब उसका माइंड शिफ्ट हो गया। जो मैं प्लेसिबो कह रहा था आपको, नाउ दिस इज व्हाट आई फील गुड, आई फील हैप्पी, आई फील फुलफिल्ड इन माय लाइफ, मेरा वो वाइड खत्म हो गया। अब उसका पूरा अपने माइंड सेट चेंज कर दिया। और मैंने कहा भाई साहब कोई सोल वोल नहीं है, वो सोल कहां गई उसकी पता नहीं, बट आपकी बैंड बजने वाली है, अगर ये वाइफ को पता चल गया तो प्लीज गेट इट ऑफ। वही हुआ, उसका वो चला नहीं वो तो, और उसकी हॉरोस्कोप भी ऐसी थी। मैंने कहा whoever she will get married is not going to work, और आपकी तो अपनी खुद की मैरिड लाइफ की बैंड बजा लेंगे आप। तो देन अल्टीमेटली तब तो लव इज ब्लाइंड, तो was madly in situation, but later on it became all complicated. Yeah, very interesting stuff, but I think it was a great conversation having you here, Dr. Kochhar. Thank you so much everyone for tuning into today's podcast, and I really hope that you got some level of value out of this. If you want to go ahead and meet Dr. Sandeep in person, you can follow him on Instagram, which is by the name of Sandeep Kochhar. Unka link we're gonna put that in the bio, and if you have any questions, please feel free to put it in the comment section below and let us know how you like this podcast. And Dr. Kochhar, thank you so much for being here. You're welcome, sir, for having me, and I really loved it, as I've said. And I wish every viewer, every hour should be happy, every moment should be happy, and that is how I believe in. If you're happy, you are blessed. Absolutely. Thank you so much. You're welcome.